हेलो बच्चों, वेलकम इन टुडेज लेक्चर स्टैंडर्ड 10th chapter number 4 quadratic equation. As in the last chapter in the polynomial we are know about the quadratic equation, that a polynomial having degree 2 is called as a quadratic equation. That quadratic equation having the standard form is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, because if a equals to 0 then x square term is vanished. X square is vanished, then it is not a quadratic form. So quadratic equation having always there are two zeros, because degree is 2, then 0 must be 2, and in this chapter we must find that the solution or zeros of quadratic equation. As we know, the standard form is ax square plus bx plus c equals to 0. A, b, c are then constant. X is a variable. So this is a standard form. Now, if we have given that equation, then first check whether it is following the quadratic or not. Suppose the equation becomes x plus 1 whole square is equals to 2 in bracket x minus 3. Is it quadratic? Let we solve. This is if we solve this equation and it will be given in that format, then it is a quadratic equation. We can solve it. X plus 1 square, that is a plus b whole square formula. What is the formula? X square plus twice x plus 1 is equals to 2x, and 2 3s are 6. Then we shift here that x square plus 2x, this 2x plus sign, it will be shifting of this minus sign, plus 1, this 6 is here, plus 6 equals to 0. Then it becomes x square, 2x get cancelled. Then 6 plus 1 is 7 is equals to 0. Now, is it a quadratic form? Yes. But you say that this is not in the form of ax square plus bx plus c, because bx term is vanished here. But we can write here x square plus 0x plus 7 is equals to 0. And now this is a quadratic equation. What you say that? Suppose x plus 2 cube is equal to 2x in bracket x square minus 1. Then we can solve that x plus 2 cube, a plus b cube formula, that is x cube plus 3, then x square into 2 plus 3 into x into 2 square plus 2 cube is equal to 2x into x square, that is 2x cube, minus 2x into 1, that is 2x. So clearly that x cube plus 3 2s are 6x square plus 4 3s are 12x plus 8 minus 2x cube plus 2x equals to 0. Then 2x cube minus x cube minus x cube. 6x square, it is simply 6x square. 12x plus 2x, that is 14x. Then simply plus 8 is equals to 0. Is it a quadratic form? No, because highest degree is 3. So this is not a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस प्रकार से भी आप एग्जांपल्स कर सकते हो. ये वाले एग्जांपल्स आपको 4.1 में मिलेगी. दैट चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट. सॉल्व ईच एंड एवरी वन एग्जांपल्स एंड चेक इट. Either if it is between ax square plus bx plus c from, then function is quadratic or polynomial is quadratic. If it is not, then it is not quadratic.
नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना भी है और फिर सॉल्व भी करेंगे आप। देयर इज एन क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। देन वी नो दैट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मीन्स व्हाट, जो साथ में आते हैं। सपोज लेट द इंटीजर्स आर कौन से, x and x plus 1, these are the consecutive integers, x and x plus 1, 2 3 4 5 6 7, these are all consecutive integers जो साथ में आते हैं पहला, और उसमें एक 1 ऐड कर दो तो सो जो बनेंगे हमारे दैट इज consecutive integers। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 306, देन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू बाय गिवन कंडीशन, that x and x plus 1 that equals to 306. So we can solve x square plus x is equals to 306. Then x square plus x minus 306 equals to 0. This is the form of quadratic. तो ये वाले आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं। इस प्रकार से आपको सारे इक्वेशंस को सॉल्व करके मतलब उसे एलिब्रेट करना है और उसे इक्वेशन फॉर्म बना के चेक करो इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट। अगर क्वाड्रेटिक है तो फिर आती है इसके सॉल्यूशंस। देन द सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, जिसे हम यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स हमें इस साल नहीं है, पर क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे पास है इस साल। देन फर्स्ट इज व्हाट, फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन क्या करते हैं हम, दैट वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म एज लाइक अ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट एंड थर्ड। हम बीच वाले नंबर को दैट इज x को स्प्लिट करेंगे इस प्रकार से कि वो जो स्प्लिट करेंगे दो नंबर का मल्टीपल आपका पहला वाला और तीसरा वाला जो नंबर है इनका सेम आना चाहिए। मीन्स व्हाट, हम करेंगे अब -306 इंटू एक्स स्क्वेयर, -306 एक्स स्क्वेयर, इसके ऐसे दो फैक्टर्स हम निकालेंगे जिससे कि हमें आंसर्स मिले दोनों की एडिशन x हो, दैट इज 1 हो। अब इसके लिए मुझे 306 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। दैट 306 के फैक्टर्स में निकालूं तो मुझे मिलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इनका कॉम्बिनेशन बना ताकि मुझे आंसर 1 मिले, तो 17, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 और 17 अगर मैं लिखूं तो 18 माइनस 17 1 आता है, और 18 इंटू 17 दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर है दैट इज एक्स और एक्स यहाँ पे भी, एंड देन मल्टीपल मुझे चाहिए माइनस और सब्ट्रैक्शन चाहिए प्लस, तो बिगर नंबर को देता हूँ प्लस साइन, छोटे नंबर का माइनस साइन। देन अब इसी को सॉल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हमने अभी इसके फैक्टर पार्ट निकाले थे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में कॉमन निकालो, पहले वाले में क्या कॉमन निकलेगा, सपोज x, अंदर बचा x प्लस 18। अब यही x प्लस 18 मुझे यहाँ पे चाहिए, इन दोनों में कॉमन तो निकले x प्लस 18, तो क्या निकालना पड़ेगा बाहर, मुझे दोनों साइन यहाँ पे प्लस चाहिए तो माइनस साइन बाहर निकालूं, तब जाके ये यहाँ पे माइनस बनेंगे। अब 18 इंटू, अब इनमें से 17x है तो यहाँ पे मुझे 17 निकालना पड़ेगा। तो देखिए 17 इंटू एक्स माइनस 17x माइनस इंटू प्लस माइनस 17 18, दीज आर द फैक्टर्स, 306 इक्वल टू 0। अब हमारा आंसर करेक्ट है, x प्लस 18 एंड देन x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, बिकॉज x प्लस 18 दो बार था, हमने कॉमन निकाला, बचा x माइनस 17। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स व्हाट, आइदर इट में भी दिस टर्म 0 और दिस टर्म 0। ऐसे तो कोई पॉसिबल नहीं कि दोनों का मल्टीपल 0 हो,
ऐसे कोई दो नंबर पॉसिबल ही नहीं जिनका मल्टीपल 0 हो, आइदर दोनों में से एक टर्म 0 हो। तो सो x प्लस 18 इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 17 इक्वल टू 0 हो सकता है। देन x इज इक्वल टू माइनस 18 एंड x इज इक्वल टू वॉट 17। अब इंटीजर्स बोला था, तो इंटीजर्स तो माइनस 18 तो नहीं आने वाला, तो बचा क्या हमारा पास 17। देन x इज इक्वल टू 17। देयरफॉर द नंबर्स आर रियल नंबर्स, हम लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देन द नंबर्स आर क्या बनेंगे हमारे 17 और 17 प्लस 1 18। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशंस कर पाओगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाली मेथड आपको बहुत बार यूज कर सकते हो और इससे आपको आंसर मिलेंगे। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से ही आपको आंसर्स मिलने वाले हैं और इसी के ऊपर डिपेंड है हमारे नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज, दैट एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज नंबर 4.2, और ये 4.2 आप घर पे इजीली कर पाओगे। इसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।